எபேசியர்கள் நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் சட்ட திட்டங்களாகிய தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இரு தினத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொண்டு அதனாலே இரு தினத்தாரை ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். அல்லாமலும் இயேசு வந்து தூரமாக இருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாக இருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை விசேஷமாய் அறிவித்தார். அந்தபடியே நாம் இரு தினத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் சாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாய் இருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திபாரங்கள் கட்டப்பட்டவர்களா இருக்கிறீர்கள். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவே praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. அப்பா நன்மைகள் அர்ப்பணிக்கிற ராஜா நீர் எங்களோடு பேசுங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த லென்த் நாட்களிலே நாம் ஆண்டுடைய சிலுவை பற்றி அதிகமாக தியானிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. इन दिनों में हम क्रूस के बारे में बहुत मनन करना चाहिए. ஹல்லேலூயா. அதிக जानकारी அதிகமாக ஆண்டுடைய சிலுவை மரணத்தை பற்றி நாம் அதிகமாக தியானிக்க வேண்டும். ज्यादा तब से हम प्रभु की क्रूस के मृत्यु के बारे में हमें मनन करना चाहिए. ஹல்லேலூயா बोलेंगे. ஹல்லேலூயா. சிலுவை மரணம் என்கிறது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே இயேசுவுக்கு குறிக்கப்பட்டது. क्रूस का जो मृत्यु है वो दुनिया उत्पन्न होने से पहले ही निश्चय किया हुआ कार्य है. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய இயேசுவினிடத்திலே ஹalleluya இந்த காரியங்கள் எல்லாமே திட்டம் பண்ணப்படும். ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவின் எல்லா மூன்று பேரும் சேர்ந்து பண்ண இந்த திட்டம். ஆமென். पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तीनों मिलकर ये जो निश्चय किया हुआ कार्य है. हालेलुया. आमेन. பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை சொல்லும்போது அவர் சொன்னார் தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தை செய்ய நான் வருகிறேன். हालेलुया. परमेश्वर जो अपने इकलौता पुत्र को जो बताया था तो जो यीशु ने बोला प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करने में आया हूँ. हमें बोलेंगे हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, हालेलुया. ஆண்டவரே தேவனே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நான் செய்ய வருகிறேன். परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आया हूँ. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹalleluya இவங்க மூவரும் ஒன்றாகவே இருக்கிறார்கள். परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक ही बनकर रहते हैं. ஹalleluya. ஒன்றாக இருக்கிறார்கள்னா அவர்கள் மூன்று விதத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் செயல்பாடுகள் எண்ணங்கள் கிரியைகள் எல்லா நடத்தைகள்ல அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு நடக்கிறார்கள். அதாவது ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். वो तीन तरीके से है पर उनके जो चाल चलन या फिर जो भी क्रिया है वो सभी एक होता है. हालेलुया. हमें बोलेंगे இந்த சபையில எல்லாரும் ஒன்றாக தான் இருக்கிறோம். सभा में सब लोग एक ही इकट्ठा एक मन है. हमें एक मन है. एक मन होएगा तो एक जैसा रहते हैं. एक मन रहेंगे तो एक दूसरे. हालेलुया. ஒரு மனம் இருந்தாதான் அங்க நம்ம ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். एक मन रहेगा तभी हम एक साथ रहते ऐसे बोल सकते हैं. हालेलुया. हमें बोलेंगे ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? लेकिन हम कैसे हैं? எவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம்? हम कितने जन हैं? हमें बहुत लोग है ना, बहुत लोग है. लेकिन हमारा विचार हमारा मन कैसा प्रभु में एक जैसा है. बहुत सारे हैं लेकिन हमारे विचार और मन एक. ஒரு மனமாக இருக்கும்போது அங்க என்ன நடக்கும்? एक मन जब हम रहेंगे तो நம்முடைய காரியம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நாம மகிமைக்கின்றதா நடக்கும். हमारा कार्य जो भी है वो प्रभु की महिमा की कार्य रीति होता है. हमें बोलेंगे हालेलुया. वैसे ही परमेश्वर पिता तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी एक ही है. हमें हालेलुया. நல்லவர் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப என்ன பண்றோம்? சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழிக்காமல் வந்தார். ये रीति रिवाज के नीति वचन को हम न्याय की रीति से हम और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसका आज्ञाओं विधियों को रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करने के लिए. हालेलुया. நம்ம நியாய பிரமாணம் என்பது எப்படி இருந்தது? சட்ட திட்டங்களினாலே இருந்தது. आज्ञाओं और विधियों से भरा हुआ. हालेलुया. वो कोई அது வந்து ஒரு தடவை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருந்துச்சு. कोई भी उसे पूर्ति नहीं कर सकता. அவன் बोलेंगे ஆண்டவருடைய 10 கட்டளைகளை மனிதன் ஒருவனாலும் அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. प्रभु के 10 विधियों को कोई भी उसे पूर्ति नहीं कर पाता था. हालेलुया. ஒன்று நிறைவேற்றும்போது ஒன்றை விழுந்துருவான். एक में वो पूरा अच्छे से पूर्ण रहेगा, दूसरे रीति में वो गिर जाएगा. हालेलुया. 9ல கரெக்டா இருக்கும், ஒன்றை விழுந்துருவான். 9 में वो सही रहता है लेकिन एक व्यवस्था में वो गिर जाता है. हालेलुया. அவன் बोलेंगे ஒன்றுமே அது வந்து நியாய பிரமாணம் என்கிறது மனிதனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படவில்லை. जो विधियां दिया गया व्यवस्था
दिया गया था वो नीति के रास्ते में नहीं चलाया था मनुष्य को। धार्मिकता रास्ते में नहीं चलाया। धार्मिकता- हालेलुया आमेन बोलेंगे आमेन। ஜூதா கராரமே பழைய ஏற்பாடுல வாசிக்கிறோம் நியாய பிரமாணம் என்பது என்னது எல்லாத்தையும் பாவத்துக்குள்ள அடைத்து போட்டது ஒரு உபாத்தியாய டீச்சரா இருந்து என்ன பண்ணுது அவர் இயேசு வரும் வரை அவர் அது நம்ம எப்படி பண்ணுச்சு நடத்திது व्यवस्था क्या करती है सारे लोगों को पाप के अंदर एक ढक्कन इकट्ठा कर कर सभी को यीशु मसीह के आगमन तक चलाया था। हालेलुया आमेन बोलेंगे समझ गए व्यवस्था विवरण कहता था कोई उसमें से धार्मिक इंसान नहीं बन सकता है क्योंकि वो उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। आमेन बोलेंगे पूरा नहीं कर सकता 10 में 8 में जाएगा 2 में गिर जाएगा। हालेलुया अभिलाषा में गिरता है तो ये पूरा नहीं कर सकता था। हालेलुया लेकिन व्यवस्था विवरण से लोगों को ये पता चला कि ये करना पाप है। पौलुस बोलता है अगर मैं दूसरे के चीजों को अगर मैं अपना ले लेता हूँ मुझे ये नहीं मालूम था कि वो पाप है करके लेकिन व्यवस्था बताती है वो पाप है। हालेलुया அடுத்தவனுடைய பொருளை இச்சிக்காதே என்று நியாயப்பிரமாணம் சொல்லாதிருந்தா எனக்கு அது பாவம்னு தெரியாது। दूसरे की चीजों में इच्छा मत रखो करके अगर व्यवस्था वाला नहीं सिखाया होगा तो मुझे नहीं पता होगा। हालेलुया हमें நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதே பாவம்ங்கிறது ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை। व्यवस्था वाला नहीं होगा तो हमें पाप क्या होती है जानने की नहीं जानने की संभावना ज्यादा है। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया लेकिन அது வந்து எப்படி இருந்துச்சு நம்ம நீதிமானாக ஆக்காதபடி அது தன்னுக்குள்ளே நம்ம அடக்கி வைத்திருந்தது। वो हमें धार्मिक नहीं बनाया लेकिन उसके अंदर एकदम कब्जा करके बंद रखा था। हालेलुया ஆண்டவரா இயேசுப்பா வரும்போது அது என்னாச்சு அவர் அதுக்கு முடிவை உண்டு பண்ணினார்। प्रभु यीशु मसीह जब आए थे तो उसको अंत ठहराया उसके अंत को अंत हो गया। हाँ எப்படி மேத்யூல ஆண்டு சொல்றாரு மேத்யூவே मत्तियों में लिखा है வேதத்தில் உள்ள நியாயப்பிரமாணத்தில் ஒரு எழுத்தையாக நான் அழிக்க வந்தேன் என்ன அதை நிறைவேற்றவே வந்தேன்। हालेलुया शास्त्र में जो भी एक भी वचन को मैं नाश करने नहीं आया लेकिन उसे पूर्ति करने के लिए मैं आया हूँ करके यीशु कहता है। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हाथ उठाकर जो हम नहीं कर सका यीशु मसीह ने हमको करके दिखाया है। आमीन बोलेंगे हालेलुया जो व्यवस्था व्यवहार में हम बंद थे हालेलुया कैसे से छुड़ा जाएंगे प्रभु जी हमको मालूम नहीं था। आमीन बोलेंगे हालेलुया मालूम नहीं था। हालेलुया लेकिन व्यवस्था व्यवहार हमारे नहीं था लेकिन वो इस्राएल लोगों के लिए था। आमीन बोलेंगे लोग अंदर बंद हो गए थे बंद में हो गए थे कैसे हम इसमें आजाद होंगे मालूम नहीं था लेकिन जब यीशु मसीह आया वो व्यवस्था विवरण का अंत किया हमको आजाद किया। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 जो नहीं कर सका वो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया क्योंकि वो पवित्र हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन बोलते हैं वो पवित्र है वो पवित्र प्रभु ही उसके हालेलुया अंत कर सकता है लेकिन पापी इंसान पाप करते ही जा रहा है लेकिन प्रभु बोला अभी मैं इसके अंत करता हूँ इनको आजाद करता हूँ। सारे जो लिखी हुए हमारे खिलाफ में हम गीत गाया था वो राजाओं का राजा है। हालेलुया विधियों का जो लेख था हालेलुया विधियों पे जो लेख लिखा था हमारे विधियों का जो लेख लिखा था उसने मिटा डाला उसे पूर्ण कर दिया उसको मिटा दिया अब इसको दूर करता है अभी अन्य ग्रह में तुम्हें चलाता हूँ। हमें बोलेंगे 2023 साल आ गया है प्रभु का अन्य ग्रह में चलते हैं अन्य ग्रह में चलते हैं அவருடைய கிருபையினால நடக்கிறோம் 2023 வருடங்களாக அவருடைய கிருபையினால நடக்கிறோம்। हालेलुया प्रभु का अन्य ग्रह में चलते हैं। आमीन बोलेंगे प्रभु का अन्य ग्रह में चलते हैं। आमीन बोलेंगे अन्य ग्रह में चलते हैं சட்ட திட்டங்களை எல்லாவற்றையும் மாம்சத்தில் ஒழித்து போட்டார் रिवाजों को सारी चीजें प्रभु ने खत्म कर दिया। மாம்சத்தில் ஒழித்து இருதரத்தாரையும் जो बोलेंगे दो लोगों को तुम्हें हमें और उन्हें हालेलुया यहूदियों को और हमें कैसे किया अन्य जाति और यहूदी को कैसे किया प्रभु ने हालेलुया अपने लिए एक ही मनुष्य को सृष्टि करके इस प्रकार शांति को कायम रखा। हमें शांति को भूल गया था लोग शांति बोले तो मालूम नहीं हमें समाधान बोले तो मालूम नहीं प्रभु बोला प्रभु जब क्रूस पर चढ़ा तो दुनिया में शांति आ गई। हालेलुया समाधान आ गया। आमीन बोलो आमीन बोलेगा हालेलुया मेरे लिए प्रभु ने शांति है प्रभु मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा हमारे लिए चढ़ा पूरे दुनिया के लोगों के लिए प्रभु ने क्रूस उठाया सारे पापों को उठाया सारे श्रापों को निकाल दिया दुख दर्द को निकाल दिया हमें आजाद करने के लिए प्रभु खुद बलिदान हो गया। हालेलुया उस जगह पे मैं और आप खड़े होने वाले थे प्रभु हालेलुया मेरा दर्द आपने उठा लिया प्रभु। हालेलुया इतना जगत में प्रभु परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र दे दिया ताकि हमें नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह खुद प्रभु हालेलुया क्रूस पर चढ़ गया। हमें बोलेंगे क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। प्रभु का लोगों हालेलुया, इसमें ध्यान रखो। हमें बोलेंगे जो मेरे लिए आने वाला दंड यीशु मसीह ने उठा लिया, पूरे दुनिया के सारे पापों को प्रभु अपने क्रूस पे उठा लिया। हालेलुया, सारे दुख को दर्द को उठा लिया, मेरे लिए कोड़े खाए। हमें बोलेंगे मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मेरे लिए दुख को सहा, हर एक उसको मार गिरती थी, हमें याद किया। हमें बोलो हमें जब पहले भी नहीं बदले, लेकिन यीशु को मैंने दुनिया रचने से पहले हमको प्रभु ने देख लिया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उलग उंडावदற்கு मुंबागवे उंगले நான் தெரிந்து கொண்டேன்। हमें मैंने तुम्हें चुना है करके लिखा। हमें बोलेंगे हालेलुया, हमें बोलेंगे दुनिया रचने से पहले प्रभु हमको देख लिया है, इसलिए उसने खाए हर एक कोड़े के लिए हमें याद किया है, ताकि हम उससे दूर रहे, पाप से दूर रहे, श्राप से दूर रहे, दुख दर्द से दूर रहे। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना आपको प्रभु परमेश्वर का जो इच्छा था वो उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। दोनों लोगों को சட்டதிட்டங்களாக நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இரு திறத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி रीति रिवाज और जो न्याय है उस सभी को प्रभु ने नष्ट कर दो जगह के लोगों को बीच की जो दीवार है उसे तोड़ दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया, पाप का दीवार निकल गया। हालेलुया। हमें बोलेंगे परमेश्वर पिता से जो हम नहीं मिल सकते थे वो दीवार को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। हमें बोलेंगे हालेलुया तोड़ दिया, इसलिए कि तोड़ा कि हालेलुया हम आजाद हो जाए। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने हमें अब्बा पिता पुकारने के लिए पुत्र का आत्मा दिया। हमें बोलेंगे जब हम जुने करार के लोग, जुने नियम के लोग पिता परमेश्वर का अब्बा नहीं बोल सकते थे, और पिता नहीं बोल सकते थे। हमें बोलेंगे पिता नहीं बोल सकते थे, पिताजी बाबू पापा बोल नहीं सकते थे। हालेलुया। सब लोगों को परमेश्वर बोलते थे। हमें बोलेंगे परमेश्वर बोलते थे, परमेश्वर बोलते थे, लेकिन यीशु मसीह आया, उन्होंने हमको सीखा हे परमंडल एंगल पितावे हमें हालेलुया जो परमेश्वर परम प्रधान है, जो आकाश में बैठा है, उनको क्या करने के लिए बुलाया? हे मेरा पिता, मेरे पिता, हमारे पिता। हमें हालेलुया। कितना महान प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। सुनने वालों प्रभु का नाम का महिमा हो, आपके हृदय में लिख लो। हालेलुया। यदि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता, हम पापी का पापी रहते थे। हालेलुया। धार्मिकता नहीं बढ़ते थे, अनुग्रह नहीं आती था, कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे दुनिया का राजा यीशु है, साथ है तेरे वो। हमें बोलेंगे दुनिया का राजा यीशु है, साथ तेरे वो, तू अपना हो। यीशु तुझे प्यार करता हो, यीशु तुझे प्यार करता हो, सबसे प्यार करता है, खुशियां मना लो। दुनिया का राजा यीशु है, साथ तेरे वो, तू अपना हो। हमें राजा आगे अपना हो, क्यों? यीशु तुझे प्यार करता हो, यीशु तुझे प्यार करता हो, सबसे प्यार करता है, खुशियां मना लो। हमें बोलेंगे यीशु आ गया, खुशी आ गई। हालेलुया। जुने नियम के वाली तो नहीं आई थी, यीशु नहीं आया था। जब यीशु से आया हुआ जुना नियम हो गया, ये नया नियम हो गया। हमें बोलेंगे यीशु आया, इतिहास को दो कर दिया, यीशु के पहले यीशु के बाद। हमें बोलेंगे हिंदू लोग भाई लोग भी वही लिखते हैं 2023 यीशु आ गया करके बयान करते हैं। हालेलुया। मुसलमान भाई लोग मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? 2023 ही लिखते हैं, 2023 फरवरी 26 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना? वो क्या बोलते हैं? बिना बोले भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु आया। हमें बोलेंगे बिना बोले भूल जाते हैं, मतलब यीशु है। 2023 पूरा दुनिया में वही लिखते हैं 2023। दुनिया वाले क्या बयान करते हैं? यीशु हालेलुया बोलेंगे, ताली बजाकर प्रभु के नाम पर बोलेंगे। चीन लोग, पारसी लोग, सब लोग, ये लोग, वो लोग, ईरान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, सभी लोग फरवरी 26 2023 लिखते हैं ना? क्या करते हैं? बिना बोले बोल जाते हैं यीशु आया है। हालेलुया। जो मानता है नहीं मानता है, लेकिन वो मानता है कि 2023 फरवरी। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। और बंदा इधर दिना तरह ಕೊಂಡಾಗಿಲ್ಲ, जो दूर थे हम लोग, प्रभु से दूर थे, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा, वो लहू बहाया। हालेलुया। मेरे लिए लहू बहाया, तुम्हारे लहू बहाया, पूरा संसार के लोगों के लिए लहू बहा कर, जो हम प्रभु पिता परमेश्वर से हम दूर थे, हालेलुया, वो हमको नजदीक कर दिया, मिला दिया।
हमें बोलेंगे मेल मिलाप, ऐसा करेंगे मेल मिलाप कर दिया भाई, मेल मिलाप, दूर था मिलाप कर दिया, हालेलुया। हमें बोलेंगे मिलाप था, हालेलुया, मेल मिलाप कर दिया प्रभु ने। हमें बोलेंगे शांति को प्रभु ने क्रूस पर दिया। ये जगत में शांत है तो यीशु मसीह के नाम से शांति है, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मगर ये சிலுவையினால கொன்று அதனால இருதரத்தாலே ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார், हालेलुया। हमें पढ़ेंगे 16 पढ़ेंगे, 2 एफिसियंस की किताब में 2:16, हालेलुया। और क्रूस पर बैर को नाश करके, पढ़ो पढ़ो, हाँ हाँ, परमेश्वर मिला, दो देह को एक करके, हमें बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। अभी किसने मिलाया? परमेश्वर ने मिला दिया। परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, मैं आपका इच्छा पूरा कर दिया है, मैंने क्रूस पर मेरा लहू बहा के मैं लोगों को छुड़ाया है। हमें बोलेंगे अभी मैं इन दोनों को मेल मिलाप करके आपके पास दे दिया प्रभु, ये तब आपका इच्छा मेरे लिए मैंने पूर्ण कर दिया। हमें बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे इतना मैं पूरी दे दूं, इतना मुझे समझ में आया है, हालेलुया। प्रभु ने क्रूस पर, और क्रूस पर बैर को नाश करके, बैर को बोलेंगे तो क्या है उनका पगै, में क्या लिखा है पगै, हमें पगै पुण्य बोटा, तो बैर को नाश कर दिया क्रूस पर। हमें बोलेंगे हालेलुया, बैर को क्या कर दिया? नाश कर दिया, बैर को नाश कर दिया, बोलो बैर को नाश कर दिया, पगै पुण्य बोटा, हालेलुया। क्रूस पर बैर को जो बैर करते थे वो क्रूस पर, वो सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। हमें बोलेंगे हालेलुया, बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को उसमें कौन कौन आता है? हम और वो इस्राएल लोग आते हैं। अन्य जाति हम आगे, हमारी भाषाएं अलग है, हम अन्य जाति हैं, लेकिन इस्राएल लोग प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन वो उनको नहीं जानते थे, लेकिन उनको भी हमको भी प्रभु से मेल मिलाप करते हैं, क्रूस पर मेल मिलाप होता है, हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देखता है तो पहला यीशु मसीह के नाम का महिमा करेगा, बोलेगा प्रभु आपने मेल मिलाप कर दिया, हालेलुया, बोलेंगे मेल मिलाप कर दिया कि नहीं किया? कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्रूस पर उसने बैर को नाश कर दिया, हालेलुया। अभी हम बैर रखने का किसी से क्या रखने का? यीशु तुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता हो, वो मुझसे प्यार करता, आप खुशियां मना लो, दुनिया का राजा यीशु साथ दे हो, तो अपना लो, यीशु तुझे प्यार करता हो, यीशु तुझे प्यार करता हो, वो सबसे प्यार करता, आप खुशियां मना लो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आ गया, खुशी आ गई, खुशी आ गई तो हम पर छा गई, हमें बोलो हालेलुया, खुशी आ गई। जब देखो अभी जब बच्चे लोग हमारे घर पे आते हैं तो खुशी आ गई तो बोलते छा गई। यीशु जब जीवन में आया, अभी चंद्रगढ़ ने गीत गाया था अपना दान के दौर में, हालेलुया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, क्योंकि पहला नहीं बदला, हमें बोलेंगे पहले नहीं बदला, हालेलुया, बाद में बदला, कभी बदला, यीशु आने का जीवन बदलता है। हमें बोलेंगे जीवन के तौर तरीके, बोलना, रहन सहन, वातावरण सब कुछ यीशु के नाम से बदलता है। हमें बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो बैर को नाश कर दिया क्रूस पर, हमें बैर को नाश कर दिया क्रूस पर, और क्या किया? दोनों तरह का, हालेलुया, दोनों को एक देह बना दिया, दोनों को एक देह है, बोले क्या? एक सोच, एक विचार, एक ही मन, हालेलुया। प्रभु में आगे दूर तक हम निकट हो, दोनों को मेल मिलाप करके पिता परमेश्वर के पास भेजेगा। परमेश्वर जी, प्रभु जी, पिताजी देखिए आपने जो काम बोला था मैंने कर दिया, फिर बोलेंगे कितना भी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हालेलुया, मेल मिलाप कर दिया। क्रूस पर यीशु मसीह ने बहा हुआ हर एक बूंद हमें स्वच्छ करता है, हालेलुया, हमारे जीवन को बदल देता है। यीशु के पास मेरे जीवन बदल गया करके बोलने से करके दिखाना चाहिए। हमें बोलेंगे बदल तो गया, कितने लोगों ने बदल गया? अभी भी मेरे मुंह से गाली निकलती है, अभी मैं टीवी में सीरियल देखता है, टीवी में सीरियल देखता है तो तुम्हारा जीवन बदला नहीं। हमें बोलेंगे मुंह से बोलने के लिए अच्छा रहेगा, बदल गया, टीवी सीरियल को देखते रहेगा, शैतान उसकी क्रिया काम करते रहेगा, आएगा खड़ा करेगा, बोलेगा ये क्या है, तू अंदर में आने का,
टीवी सीरियल में ऐसे बोलते हैं ना, तू अंदर नहीं आने का। प्रभु बोलता है तू परलोक में आ, शैतान बोलता है तू अंदर नहीं आने का। टीवी सीरियल के द्वारा शैतान क्रिया करता है। हालेलुया। अगर यीशु का बच्चा है तो वो उसका आजमा के देखेगा, उसको परख के देखेगा क्या सही है क्या गलत है। अगर सही को अगर सही नहीं समझे, अगर गलत को गलत नहीं समझे, तुम अभी तक नहीं बदले। हमें बोलेंगे ये भी बोलना है हमें। यीशु के पास आ गया, बदल गया, बोलने से अच्छा है कि दूसरा लोग बोलना चाहिए। मैं क्या बोला था पहले, दूसरा बोलना चाहिए। हालेलुया। जब मैं ऑटो वाले में काम करता था IDPA में, मेरे को एक ने मेरा बाजू वाला क्या बोलता था मालूम मेरे को, ये फादर आ गया है। हालेलुया। मेरा बाइबल आगे रहता था, GM आने दो, CGM आने दो, ED आने दो, कोई भी आने दो, मेरा बाइबल सामने रहता था टेबल में और सब आके देखता था। उसमें एक जलन होकर भी एक आदमी आता था। कभी पढ़ता है, कोई तो जीवन है ना, मैं बोलता था कभी पढ़ता है, जीवन को पढ़ रहा हूँ, प्रभु का वचन को पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हमें मिलेगा तब काम के बीच में हमें बोलेंगे, काम में काम, वचन में वचन, हमें बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु दिया हुआ काम को भी निभाना है। जब टाइम मिलता है तो वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हमें बोलेंगे बदलता है वही जो पढ़ता है, जो पढ़ता है वही उस पर चलता है, चलता है वही यीशु को महिमा करता है। हमें बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और हमें सिलबिला कोंड्रू कोटा जो बैर हम रखते थे, यीशु मसीह ने वो बैर को सूली पर नाश कर दिया, हमको छुड़ा दिया। हमें बोलेंगे नाम महिमा पड़ोदा है। हालेलुया। उस गलातियों की किताब में 3 अध्याय में, गलातियों की किताब ले लेंगे 3 अध्याय में 13 वचन क्या लिखा है। गलातियों की किताब एफेसियन के पीछे वाला किताब है। ఎవరు சபிக்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார்। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पढ़ेंगे मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। काट पर बोलेंगे तो सूली पर, वो बोले ना वृक्ष पर, झाड़ पर। काट क्या लिखा है। हालेलुया। மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எண்ணியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி न्याय प्रमाण के साबत की निकाय हमें मीट कोंडा। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। खाट पर लटका है जो बोले ना मरम वृक्ष, झाड़ पर जो भी लटका है वो शापित है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर लटका। हमें बोलेंगे 3 किले हाथों में, 2 किले पैर में, 1 किले 3 किले टोके गए थे, उस पर यीशु मसीह लटका, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए। हमें बोलेंगे हालेलुया। व्यवस्था से आने वाला सारे शापों से हमको छुड़ा दिया। हमें बोलेंगे हालेलुया। व्यवस्था विवरण में 28 में 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो उसमें आशीर्वाद लिखा गया है। 15 से लेकर आखिरी तक वचन को पढ़ेंगे तो उसमें शाप लिखा गया है। वो सारे शापों से हमें बचा लिया यीशु मसीह का लहू। आमीन बोलेंगे, आमीन बोलो, आमीन, 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 आमीन। सब आमीन बोलेंगे। सारे शापों से हमको मुक्त किया यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर। हम लटकने वाले, हमको छोड़ दिया, हमको बचा लिया, खुद लटक गया। आमीन बोलेंगे, आमीन। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। पहला अध्याय में 7 वचन ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। सारे हमारे बीमारी को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें बोलेंगे इतने में चले गए ना, साफ मिलेगी रहे। कितने लोग बोलते हैं मैं शाप से अलग हो गया, मेरे शाप को यीशु ने उतार लिया, अभी मुझे उतारने की जरूरत नहीं है। मेरे पाप को यीशु मसीह ने समझ लिया, अभी मुझे मैं छुड़ा गया हूँ। हालेलुया। मैं छुड़ाया हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से मैं शाप से छुड़ा गया। जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आए, मैं हर एक में मुक्त हो गया। यीशु का खुशी को मैं पाकर कायम कर उसके नाम को महिमा करूंगा। इधर आमीन बोलते हैं। அவருடைய நாமத்தை என்ன உயர்த்துவேன், எப்போது என் வாழ்க்கையில் வந்தாரோ என் வாழ்க்கை மாறினது, அவருடைய மகிமை என் மேல் இருக்கிறது, அவருடைய நாமம் என்னன்னு நான் சோதனை சென்று தைரியம் செலுத்துவேன்। हालेलुया। महिमा करेंगे। हालेलुया। दूरமாய் இருந்த எங்களை, जो दूर थे हमें, जो नजदीक थे उनको दोनों को मेल मिलाकर हमें बोलेंगे, हमें अकेले नहीं है। हमें बोलेंगे हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामने हम अब्बा पिता करके पुकार वाले पुत्र का आत्मा दिया है। पहले नहीं पुकार सकते थे। पापी बाप को पवित्र बोल सकता है, पिता बोल सकता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह
उनको देख के बोलते हैं पिताजी मैंने लहू बहाकर क्षमा के लिए क्या किया। परमेश्वर बोलता है मेरे प्रिय पुत्र यीशु, हमें बोलेंगे क्या बोलते हैं परमेश्वर यीशु को, मेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह। आपको देखकर आपने लहू बहाया, इसलिए मैं इन सभी को मैं अपना बच्चा लोग बना देता हूं। बच्चा बना देता अधिकार हो गया कि नहीं। जब बोला पहला 12 में क्या लिखा है, यीशु मसीह के नाम में जो भी विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र बन गए। पुत्र बन गए तो हम स्वतंत्र भी है, अधिकार भी है। जो बाप का है वो बेटे का है, हमें जो बाप है वो बेटी का है। ताली बजा के हमें जो बाप का है, अब बाप का है ना, बेटी लोग है कि नहीं। हमें इधर 3 बेटियां हैं, बाप उधर है 86, प्रभु का अनुग्रह से अभी भी एकदम 89 89। अरे भैया हमें बोलेंगे 89, प्रभु का नाम है अभी भी। बाप का जो जागीर है बच्चों के लिए। अरे भैया वैसे प्रभु आकाश में इतना बड़ा कर रखा है, वो सब किसके लिए, हमारे लिए। ताली बजाएंगे प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अंदर पोर भी नरक सेवा आने की सेवा हमें मतलब ले जाएगा, ले जाएगा तो आएगा ना लेने के लिए। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा आनंद जीवन मिलकर हम हमारे सारे पापों से छुड़ाया, बेटा बेटी बनाया। हमें बोलेंगे हालेलुया। हमें हम पिताजी का जो भी है वो हमारा हकदार है। हमें बोलेंगे वो अधिकार है। हालेलुया। अभी हम छोटे घर में हैं या मिडिल घर में, बड़ा घर में है, लेकिन वहाँ हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। हम जो बहन नहीं कर सकते हैं, हमें बोलेंगे और महिमा को ऊपर तक में अल्लाह इंटरटेन करे। हालेलुया। हमें बोलेंगे रोमियो की किताब में 8:18 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब में 8:18, रोमियो की किताब में 8:18 पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया पढ़ेंगे। हमें बोले हिंदी में पढ़ेंगे संजय का पढ़ो। मैं समझता हूँ हाँ हाँ जो हम पर होने वाली है कुछ भी नहीं है। मराठी भाषा जोरा हाँ असं मी कशासाठी महिमा आपल्याला प्रकट होण्याची वेळ आली आहे। हालेलुया। महिमाचे प्रकट होण्याची वेळ आली, पण मी या जगातलं काय पण मला दुःख असेल, एक क्लेश असेल, मला ही काळजी देणार नाही, कारण काय प्रभूच्या महिमा येणार आहे। हालेलुया। हमें बोलेगा प्रभु महिमा येणार। हालेलुया। क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ। क्या समझता हूँ मैं, तुम क्या समझते हो? कलीसिया के लोग क्या समझते हैं? बोलो, सब बोलो। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले है कुछ भी नहीं है। काल बाढ़ गिरिवर महिमा की ओपिड तक अल्लाह इंटरनीरे। हमें बोलेंगे हालेलुया। आने वाला वो महिमा के लिए ये दुख एक क्लेश क्या है। हालेलुया। थोड़ा सा आएगा चला जाएगा, दुख हमको बंद नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। हालेलुया। अगर प्रभु दुख भी अगर हमारे लिए
अनुमति करता है तो उसके पीछे सुख भी रहेगा। हमें बोलेंगे हालेलुया। एक दुख आता है तो प्रभु 2-3 दिन में निकाल देगा, लेकिन सुख को हमेशा अवश्य देगा। हालेलुया बोलेंगे। बच्चों लोग कितना सह सकते हैं। अभी बच्चे इसको एक लाठी से एक ही मार मारते, छोटा है ना, अगर गलती करता है तो लगती है कि इसको एक ही मार मारेगा ना, जोर से थोड़ा सा, वो उतना ही सहन सकता है, बराबर। लेकिन बड़ा होकर हम कितना सहन सकते हैं? कम से कम 4 तो सहन सकते हैं कि नहीं? 2, 3, 4। बाद में आए तो हाथ पीछे कर देते हैं क्योंकि दुखता है, लेकिन दुखने के लिए नहीं बोलेगा, दुखने के लिए नहीं बोलेगा। ये 4 काठी ले सकता है, लेकिन प्यार से मारेगा। देखो हमें चाइना का काठी मालूम है, चाइना का बॉल इतना फेंको लगेगा नहीं, क्योंकि वो रबर दिखता है वैसा नहीं है। अरे भैया प्रभु हमको दुख देता है, बोलेगा उसमें तो हमको बनाता है। दुख में मेरा बच्चे क्या करते हैं? मेरा महिमा करता है क्या? मेरा महिमा नहीं करता, देखता है। दुख में भी प्रभु महिमा करेंगे, सुख में भी प्रभु महिमा करेंगे। नाम के लिए ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम को यह महिमा करेंगे। हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि सब प्रभु ने मेरे लिए कर चुका है। सूली पर प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ करके रखा है, इसलिए एक क्लेश आए, दुख आए, वो आने वाला महिमा के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। वो कौन सी महिमा है? जब यीशु आएगा लेके जाएगा वही महिमा। हमें बोलेंगे हमें इतना हमें चुनेगा, यीशु आएगा लेके जाएगा वही हमारा महिमा है। अगर वो महिमा करे मैं तुझे को ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है, इतना हमें बोल रहे हैं, इतना हमें चुनेगा। हालेलुया हालेलुया। हमें क्रिस्तु नमक का साव माना, मसीह मेरे लिए श्राप बन गया ताकि मैं उसके लिए चुनूं। प्रभु मेरा दुख उतार जाए ताकि मैं सुख में रहूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे लिए पापों को क्षमा किया, इसलिए मैं आजाद हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ बना दिया, इसलिए मैं उसका बच्चा बन गया। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हमें बोलेंगे आज थोड़ा ही बताया है, हमें बोलेंगे आने वाले दिनों में और हम प्रभु के नाम को महिमा के लिए और ध्यान करेंगे, महिमा मदन करेंगे। हमें बोलेंगे सब के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बोलते प्रभु हमसे बात किया है। हालेलुया। सभी आंखें बंद करके उठ के खड़ा होकर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी, धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब आगे बंद करके प्रभु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। इंगे बात करेंगे। हालेलुया। इंगे बात कर எழுந்து நின்று ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை செலுத்துங்க। हालेलुया हालेलुया। खड़े होकर प्रभु के नाम के लिए महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम रखा है, पिता परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम रखा है। पवित्र आत्मा जी वो प्रेम को हमारे हृदय के अंदर उठेला है। हमें बोलेंगे परमेश्वर आत्मा को धन्यवाद बोलेंगे, आत्मा जी को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपका बेटा बना इतना काबिल किया प्रभु हमको, आपका बेटा बनाकर हमको इतना काबिल किया प्रभु, आपको धन्यवाद। हम तो कुछ भी नहीं थे प्रभु, लेकिन हम आपकी नजर में बहुमूल्य प्रभु जी। दुनिया के लिए हम कुछ भी मोल है नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपकी नजर में प्रभु हम अनमोल है प्रभु। हालेलुया। हमारे जो अंदर का जो प्राण है वो आपके अनमोल है प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया। धन्यवाद यीशु बोलेंगे, मुंह खोल के बोलेंगे धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका नाम को महिमा करते प्रभु जी। आपने हमारे लिए हालेलुया सारे आपका पवित्र लहू को, आपके बूंद को भी हमने दे दिया ताकि हम छुड़ाए। हम आपका बेटा बेटी बनकर आपके साथ हमेशा रहे प्रभु जी। आपका नाम का महिमा करते बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे आपका नाम का महिमा करते बोलेंगे, मुंह खोलकर बोलेंगे प्रभु जी हम आपका नाम का महिमा करते प्रभु जी। आपका वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमसे बात किया, धन्यवाद प्रभु जी। इससे बात करके हर एक जिंदगी और बदलने दो प्रभु, और आपका नाम का महिमा होने दो प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी आपका रास्ते में, आपका मार्ग में चलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य जीवन है प्रभु। आपका मार्ग में चलने के लिए हमको सहायता कीजिए, वो जीवन तक आप ले जाइए। अनंत जीवन आपने हमको वादा किया है, वो अनंत जीवन हमको दीजिए प्रभु। हालेलुया बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अनंत जीवन प्रभु, अनंत जीवन प्रभु, आपका नाम का महिमा प्रभु। हमें तैयार कीजिए प्रभु, आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। हमको तैयार कीजिए वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, आपका मेल मिलाप के जरिए, आपका प्रेम के जरिए। हालेलुया। हम दूसरे के प्रेम से एक पर होकर हम रहना प्रभु, हमको सहायता कीजिए। ஒரு மனதோடு ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பிலும் ஐக்கியத்திலும் அப்பா உம்முடைய வசனத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் ஜெபத்திலும் எந்த நம்மோடு கூட நெருங்கி இருக்க அந்த கிருபை தாங்க। हालेलुया। आपसे हमेशा प्रभु जी आपका निकट रहने के लिए, आपका वचन को हम पालन करने के लिए हमको सहायता कीजिए। आप ऐसे किए तो धन्यवाद देते हैं। सब हाथों को उठाकर, दाहिने हाथ उठाकर हिलाकर बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका पवित्र नाम को महिमा देते हैं, पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा की महिमा देते हैं। हालेलुया। हर एक प्रभु जी आपके बच्चे हर एक आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, तो सारा आशीर्वाद होने दो, हमें शांति समाधान होने दो, मन में शांति होने दो।
हालेलुया, आनंद होने दो, खुशी होने दो प्रभु जी, सारे जरूरत प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने दो, पूरा होने दो। हालेलुया, सारा अधूरा निकाल कर प्रभु सर्व सिद्धि से बना दीजिए, सारे कमियों को निकाल कर आशीष से भर दीजिए, चंगा कर दीजिए, सारा कमजोर यीशु के नाम से निकल करके घूम देते हैं। हालेलुया, आशीष होने दो, चंगा होने दो, मन में शांति होने दो। प्रभु देख लेगा हमें, यीशु मसीह देख लेगा, वो मेरे साथ रहता है, सब कर मेरा पिता देख लेगा हमें, पिता यीशु मसीह देख लेगा हमें। हालेलुया, आपका हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी, आपसे बात किया तो धन्यवाद प्रभु, आपके बच्चे हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया, हमें प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, हमें इसके लिए प्रार्थना करेंगे, देश के नेताओं के लिए और जो राजनीति करते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस पाए लड़की हम लड़के होंगे काल के होंगे लड़के और देश के काम होंगे समुद्र का नाम और देश के आलू के मध्यान्ह के निकट उन्होंने अड़िगे अरिविल वलदಕ್ಕೆ நீங்க அவங்கள உதவி செய்யுங்க யார் விரோதமாக எதிர்க்காதபடிக்கு தேசத்துக்கு நல்லது அது பண்ணுறதுக்கு நீங்க வழிநடத்தலாம். எந்த ஒரு சத்ருவும் அதுல எழுந்து அவங்களுடைய கிரியை எதுவும் நடக்காதபடிக்கு இயேசு நாமத்தை அதமாக்குது. எந்த ஒரு சத்ருவின் கிரியைகளும் இந்த தேசத்தில் நடக்கக்கூடாது. விக்கிரக ஆராதனை எந்த இடத்துல நடக்கக்கூடாது, அந்த அதோட கிரியை எங்கேயும் பயங்கரமா இருக்கக்கூடாது. இயேசு நாமத்தை நம்ம அதை கற்றுக்கணும். இயேசு நாமத்தை நாங்கள் அதை அறிக்கை பண்ணணும். அதாவது எங்க கூட எங்களோட நீங்க தேசத்து மக்களுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஒற்றுமையா கொடுங்க. இந்த ஜாதி இந்த மதம் இந்து கிறிஸ்டின் பார்க்காதபடிக்கு எங்க தேசம் நாங்க ஒன்னா இருக்கோம், நாங்க வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒற்றுமை கொடுங்க. அந்த ஒரு எந்த ஒரு கலவரமும் எங்கேயோ பிரச்சனை வெறுப்பு போறாம அதனால இருக்காதபடிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. தேசத்து அதிகாரம் உங்களுக்குள்ள வளர்ச்சி செய்யுங்க. இந்த எங்க தேசம் இன்னும் வளர்றதுக்கு நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும். அந்த எல்லா விதமும் நீங்க உதவி செய்யணும். அடுத்ததாக நம்ம वालिबा यदि दूसरे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिनकी शादी के लिए उम्र उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनको बच्चे की जरूरत उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो घर में समस्या आती है हस्बैंड वाइफ या फिर कर्जे की प्रॉब्लम है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपके सन्निधान में आते हैं, प्रभु आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं। प्रभु हमारे आपने लिखा है कि जो प्रभु का राज्य को पहला ढूंढेगा उसको सारे चीज साथ में मिलेंगे करके जो है प्रभु, वैसे हम आपके राज्य को पहले ढूंढने चाहिए। प्रभु हमारे जो भी कार्य है, जो भी परिवार में समस्या है, शादी की समस्या है, बच्चे की समस्या, कर्जा की समस्या है, सभी हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु बोझ थके हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे जगह पर आप अपने बोझ को ठहराओ, मैं उसे आपको ठीक करूंगा, आप उसे मत लेकर चलो करके बोलते हैं। आज हम इस सभा में आए हैं प्रभु, हमारे सारे बोझ आपके चरणों में रखे जाते हैं प्रभु, हम आज से बोझ नहीं उठाएंगे प्रभु, जो भी है आप देख लोगे। हम हमारे काम से प्रार्थना करना और आराधना करना है परमेश्वर, हम आपको आराधना करेंगे, आप ऊंचा उठाएंगे, हम किसी दाहिनी और या फिर बाईनी ओर से मदद आएंगे हम नहीं देखेंगे। हमारा पर्वत एक है, वो यीशु मसीह है, वहाँ से हमें मदद आएगी। कौवा के द्वारा भी हमें खाना खिला सकता है। हम आपके संविधान में आते हैं, आप हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। आज हम एक ठान लेते हैं कि आज से जो भी बोझ हम इधर उठाए के जाते हैं परमेश्वर, जैसे हमला ने उस प्रभु के सभा में अपने आंसू पूरा निचोड़ कर गई, फिर वो दुखी नहीं रही, जैसे हम आज पूरा निचोड़ेंगे प्रभु। आज आराधना होने दो, जो मैसेज होने दो, आपके संविधान में हम निचोड़ेंगे, फिर हमें एक जैसे एक भविष्यवक्ता पैदा हुआ सामुएल की रीति से, वैसा हमारे कर्जा को छूट मिलेगी, बच्चे पैदा होंगे, शादी एक अच्छे इंसान पे हो जाएगी, या फिर काम होगा, जो भी है परिवार का समस्या आप देखिए परमेश्वर, हम आपके शरणों में देते हैं, आप हमें ऊंचा उठाएंगे ताकि बाकी लोग बोल सकेंगे प्रभु को ढूंढा इसीलिए आशीषित है, हम भी ढूंढ सके करके हम आपके लिए एक उदाहरण के समान रहने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे जो भी डिजीजेस आ रही है, जो भी अर्थक्वेक आए हैं, या फिर जो भी देशों के देश समस्या विरोध उठ रहे हैं, या फिर जो भी अर्थक्वेक या फिर कैलामिटी जो भी आ रही है, या फिर बिना अन्न के कारण पैसों के बिना जो देश में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम संविधान में आते हैं। देश और देश के बीच में एक प्रेम की भावना बढ़े परमेश्वर, एक दूसरे को, हम भी इंसान है वो भी इंसान है, वैसे देखने के लिए हमें
मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु आपके आगमन के निकट है और हम समझते हैं, पर प्रभु जल्दी से जल्दी और लोग आपके चरणों में आए, आपको जाने, ताकि आखिरी दिनों में वो कोई ना फंसे, एक भी जन नरक में ना जाए परमेश्वर। आपके सुसमाचार उस जगह पर जाना चाहिए परमेश्वर आखिरी दिनों से पहले, और देश में शांति भी बने रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे लोगों को आप शांति को, कोई बीमारी ना फैले आगे से, या फिर याकूब के विरोध कोई मंत्र नहीं, इस्राएल के विरोध कोई जागरूक होना नहीं करके आपने बोला है, हमारे विरोध और प्रभु के बच्चों के विरोध कोई भी मंत्र या फिर जागरूक ना होकर कोई भी हमारे दाहिने गिरेंगे बाइने गिरेंगे, लेकिन आप नहीं गिरोगे कि जो वचन लिखा है ऐसे आप हमें चलाइए परमेश्वर। सारी चीजों को आप कार्य कीजिए, और रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसमें भी सारे हल होने के लिए एक दूसरे को समझकर जो प्रभु आप उनसे बात कीजिए, दोनों को हल होने के लिए कोई भी गम या फिर किसी लोग को मारा नहीं जाना चाहिए, शत्रु का कार्य पूरा नहीं होना चाहिए, उसका कार्य पूर्ण करना उसका काम है, वो काम को हमें उससे हम विजय नहीं पाना चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रभु जीवन देता है तो जीवन ही होना चाहिए सब जगह, कोई जगह पर खून या फिर बीमारी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर अद्भुत नहीं आना चाहिए। हम आपके संविधान में आते हैं प्रभु, आप उसे याद कीजिए, हमारे प्रार्थनाओं को आपके